Ladies and gentlemen, Inspector General. Award winners. The Government of India shall now be presenting the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service. This medal is awarded for acts of exceptional courage, conduct of operations under difficult conditions, and prolonged Inspector General Kandambakam Ramani Suresh. Tatrakshak Medal 0166 Charlie. Inspector General Devraj Sharma, Tatrakshak Medal 5015 Victor. Inspector General Arun Srivastava, Tatrakshak Medal 4025 Victor. देखो राजनाथ का प्रोग्राम राजनाथ का प्रोग्राम चल रहा है देखेगा लाइव वन है या तेरा देखना राजनाथ। We shall now be presenting the Tatrakshak Medal Gallantry. Deputy Inspector General Anurag Kaushik. On 3rd September 2020, Indian Coast Guard ship Sujay undertook firefighting operations of motor tanker New Diamond off Sri Lanka in challenging and treacherous situation. For his courage and incisive leadership, the officer is awarded Tatrakshak Medal Gallantry. Deputy Inspector General Anurag Kaushik, 0428 Victor. Commandant J.G. Shankar Raju. On 25th May 2021, Indian Coast Guard ship Vaibhav, under the temporary command of the officer, rendered assistance to Sri Lankan authorities in extinguishing fire on board motor vessel Express Pearl off Colombo for 4 days. For his brave handling of the operation, the officer is awarded
Tatrakshak Medal, Gallantry. Commandant JG Shankar Raju, 1595 X-ray. Deputy Commandant Abhishek Kumar. On 19 September 2019, Indian Coast Guard ship Rajveer detected an unidentified suspicious vessel at night. The officer tactfully boarded the vessel under rough sea conditions and seized 1,156 kilograms of narcotics. For his brave and gallant leadership, the officer is awarded Tatrakshak Medal Gallantry. Deputy Commandant Abhishek Kumar, 4233 Sierra. Pratap Narayan, Pradhan Adhikari, NE. During the firefighting operations on board motor tanker New Diamond off Sri Lanka on 3rd September 2020, the subordinate officer played a pivotal role in successfully operating the external firefighting monitor onto the seat of fire. For his timely action and determination, the subordinate officer is awarded Tatrakshak Medal Gallantry. Pratap Narayan, Pradhan Adhikari, NE. 02433 Lima. Yaduraj Yadav, Pradhan Adhikari ME. On 3rd September 2020, when motor tanker New Diamond signaled a mayday for engine room fire, the subordinate officer, disregarding his personal safety, gallantly fought the fire from Indian Coast Guard ship Shaurya, thereby restricting the spread of fire into the highly inflammable cargo. For exemplary grit, the subordinate officer is awarded Tatrakshak Medal Gallantry. Yaduraj Yadav, Pradhan Adhikari ME, 02497 Zulu. Sanjay Kumar Singh, Adhikari NE. On 12th August 2019, Indian Coast Guard ship Samudra Pehredar sailed to assist offshore support vessel Coastal Jaguar that had caught fire. The subordinate officer embarked the OSV and fought the fire in challenging conditions. For his courageous and valiant actions, the subordinate officer is awarded Tatrakshak Medal Gallantry. Sanjay Kumar Singh, Adhikari NE. 04217 Papa. Subhash Pradhan QA. On 12th August 2019, Indian Coast Guard ship Rani Rashmoni was deployed for rendering assistance to offshore support vessel Coastal Jaguar, which had a major fire on board. He rescued 27 OSV crew who had jumped into the sea with total disregard to own safety. For his bravery, the Pradhan Navik is awarded Tatrakshak Medal Gallantry. Subhash Pradhan Navik QA 05655 Hotel. Ravi Kumar, Uttam Navik NE. On 3rd September 2020, during the firefighting operations on board motor tanker New Diamond
of Sri Lanka by Indian Coast Guard ship Sujay. The Uttam Navik, operating the ship's external firefighting system, aimed the water jet on the seat of fire for prolonged hours, resulting in dousing of fire. For his approach and valuable input in critical situation, the enrolled personnel is awarded Tatrakshak Medal Gallantry. Ravi Kumar, Uttam Navik NE 13104, Mike. We shall now be presenting the Tatrakshak Medal for Meritorious Service. This medal is awarded for valuable service characterized by resourcefulness and devotion to duty, including prolonged service of ability and merit. Inspector General Anand Prakash Badola, 0248, Mike. Deputy Inspector General Anil Kumar Talemaguru, 0224, Juliet. Deputy Inspector General Mukul Garg, 0260, Papa. Deputy Inspector General Kailash Negi, 0311, Echo. Deputy Inspector General Sundaram Babu Venkatesh, 0330, X-ray. Deputy Inspector General Retired Kanwar Bihari Lal Bhutnagar. Harvinder Singh, Pradhan Adhikari, 01133, Zulu. Somlal, Pradhan Adhikari, 00826, Hotel. Ram Chandrilenka, Pradhan Adhikari, 03485, Whiskey. I.K. Balan, Pradhan Adhikari, Retired. थैंक यू सर। आज का ये अलंकरण समारोह यहीं पर समाप्त होता है। May I request Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, to address the gathering. Director General, Indian Coast Guard, Mr. K. Natarajan,
Mr. Sanjeev Mittal, Financial Advisor, Defence Services, senior officials from Ministry of Defence, commanders, officers, and men of the Indian Coast Guard, awardees, and their proud family members, friends from media, ladies and gentlemen. इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स और बहादुर जवानों के सम्मान में आयोजित इस इन्वेस्टिच्योर सेरेमनी में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल को दिए जा रहे ये अवार्ड्स और मेडल्स केवल अवार्डीज का ही मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आप सबको राष्ट्र और संगठन के हित में बेहतरीन कार्य करने के लिए भी यह प्रेरित करेंगे। मैं सभी मेडलिस्ट और उनके परिजनों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही आप सभी को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी मुझे आप लोगों की गार्ड ऑफ ऑनर टीम का इंस्ट्रक्शन करने का अवसर मिला। आप लोगों के स्मार्ट टर्नआउट से लेकर सिंक्रोनाइज ड्रिल तक, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में अगर मुझे एक शब्द में नहीं कहना होगा तो मैं कहना चाहूंगा एक्सेलेंट परफॉर्मेंस रही है आप लोगों की। यह मोरल आप लोगों के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड कम्युनिटी की एनर्जी और इंथुजियाज्म को एक साथ दर्शाता है। मैं इसकी भी अपनी तरफ से सराहना करता हूं। आप लोगों की इसी एनर्जी, इंथुजियाज्म और मोरल की बदौलत 4 से लेकर 6 बोट्स के साथ शुरू हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड आज 150 से ज्यादा शिप्स और 66 एयरक्राफ्ट के साथ दुनिया के बेहतरीन मैरीटाइम फोर्सेज में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। आपकी प्रोफेशनलिज्म और लगातार ग्रोइंग स्टेचर देशवासियों में इस बात का भरोसा जगाती है कि हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट बहादुर प्रहरियों की सुरक्षित निगरानी में है। साथियों, समुद्र के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। समुद्र ने एक तरफ हमें धन खनिजों और वनस्पतियों से समृद्ध किया है, दूसरी ओर इसने हमें दुनिया भर से जोड़ने का भी काम किया है। हमारी परंपरा, उत्सव, त्योहार, कला, साहित्य, संस्कृति, ट्रेड और इकोनॉमी बहुत हद तक समुद्र से जुड़े हुए हैं। पर इस समृद्धि के साथ साथ हमें समुद्र से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां भी हमारे सामने कम नहीं मिली है। इन चुनौतियों ने हमें सिखाया है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर किए बिना एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इंडिया के मैरीटाइम जोन्स को सेफ, सिक्योर और पॉल्यूशन फ्री रखना हमारी सुरक्षा जरूरतों, एनवायरमेंटल हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक साथ इंश्योर करता है। मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड इन सभी चैलेंजेस को एक साथ सक्सेसफुली एड्रेस कर रहा है। साथियों, आज हमारा देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इस राह में अनहिंडर्ड मैरीटाइम एक्टिविटी हमारी एक प्रमुख आवश्यकता है। एक राइजिंग मैरीटाइम पावर होने के चलते हमारी प्रॉस्पेरिटी बहुत हद तक समुद्र पर निर्भर है। इसलिए अपने साथ साथ क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा और प्रगति हमारा एक यह प्रमुख उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में यह उद्देश्य भली भांति स्पष्ट होता है। भारत सरकार के विजन के अनुरूप कोस्ट गार्ड रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने, इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम पीस बनाए रखने और इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसीज के साथ मिलकर कार्य करने के लिए सदैव अग्रसर रहा है। साथियों, मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे कोस्ट गार्ड द्वारा किए गए गैलेंट एक्ट का प्रभाव न केवल हमारे क्षेत्र बल्कि नेबरहुड पर भी बराबर पड़ा है। आपका एक एक सक्सेसफुल मिशन आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिव रिस्पांस को भी दिखाता है। वेरी लार्ज क्रूज कैरियर, न्यू डायमंड या फिर कंटेनर वेसल एक्सप्रेस और की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, हमारे कोस्ट गार्ड ने सागर
आरक्षा 1 और 2 ऑपरेशन चलाकर फायर फाइटिंग और पॉल्यूशन रेस्पॉन्स में अपना एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। आप लोगों ने यदि टाइमली कार्रवाई न की होती तो यह इंडियन ओशन रीजन में एक बड़ी तबाही का कारण बन सकता था। आप लोगों द्वारा किए गए इस साहसी अभियानों से देश को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली है और एक रेस्पॉन्सिबल और कैपेबल मैरीटाइम पावर के रूप में इंडिया की पोजीशन भी यह मजबूत हुई है। कंट्राबैंड यानी इलीगल वेपन और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ चलाए गए आपके अभियान भी यह सराहनीय रहे हैं। ऐसे तत्व न केवल हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उससे कहीं अधिक हमारे समाज और राष्ट्र पर भी बुरा प्रभाव यह डालते हैं। खासकर हमारी नई पीढ़ी इनसे प्रभावित हो सकती है, जिनके कंधों पर आने वाले समय में देश की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इस तरह प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध व्यापार पर व्यापक रूप से रोक लगाकर आप न केवल वर्तमान की चुनौतियों से निपटते हैं बल्कि देश का भविष्य भी सुरक्षित और सुदृढ़ करने का भी आप कार्य करते हैं। अभी कुछ समय पहले पाउटे और यास तूफानों में भी अपनी जान जोखिम में डालकर अनेक नाविकों और कोस्टल एरिया के अनेक लोगों की जान बचाने का भी सराहनीय काम आप लोगों के द्वारा ही हुआ है। ऐसे मुश्किलात में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिवली सहायता करने के लिए मैं पुनः आप सबकी तहे दिल हार्दिक सराहना करता हूँ। इसी प्रकार की एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जहां आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और सेंटिनल्स ऑफ द सी की प्रतिष्ठा को कायम रखा है। इन सभी उपलब्धियों का श्रेय हमारे कोस्ट गार्ड के सभी अफसर और जवानों को समृद्ध रूप से जाता है। इस अवसर पर मैं हजारों जवानों के परिजनों को भी अपनी ओर से नमन करता हूँ, जो उनकी बैकबोन है। ये उन्हीं के टायरलेस एफर्ट्स हैं जो हमारे जवानों को मोटिवेट करते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदैव उन्हें तैयार भी रखते हैं। अंत में मैं एक बार फिर सभी मेडलिस्ट और उनकी फैमिलीज को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आप सबके भविष्य के प्रयासों की सफलता करते हुए अपना निवेदन यही समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जापान के साथ, ओमान के साथ, इंडोनेशिया, सभी कंट्रीज के साथ जो आते हैं वहाँ पर हमको हम लोगों में ट्रेनिंग होता है। पहले बार इतिहास में कोस्ट गार्ड का साइटेशन दिया गया। आपकी टाइम पे हम लोग कोस्ट गार्ड बहुत सारा काबिल हुआ, जितने जहाज हमने किया हुआ है सभी, जितना आज तक हम लोग को जितना हमें हमारा बहुत ऊपर कच्चा है उतना कच्चा हम वापस गवर्नमेंट को दिया हुआ है अर्निंग्स को।